Hi, this is Nivedita Gupta, your faculty at Education World, and today we are going to study Chapter 1 of Geography, Environment. So, first of all, what is environment? Everything surrounding you is environment. The word environment actually originated from the French word environner, which means basically neighborhood. So, environment is a basic life support system. It provides us with everything that we require to survive. It provides us the air we breathe, the water we drink, the food we eat, the land where we live on. So, nature, place, people, things, etc., that surround the living organisms all make the environment. World Environment Day is celebrated on 5th June. So the so first of all, we can classify the environment into natural and human environment. The natural environment refers to the biotic and the abiotic conditions which exist on the earth. Biotic क्या है? जिनके अंदर लाइफ है. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एबायोटिक क्या है? जिसके अंदर लाइफ नहीं है. एग्जाम्पल लैंड. Human-made components of the environment, they are basically created by human beings. For example, dams, roads, bridges, etc. The human environment also include the human interactions, जैसे कि family, society, religion, etc. Now, this diagram is given in your NCERT and ये बहुत अच्छे से explain करता है the components of environment. So first is the natural component of the environment, the air, water, land, and then the biosphere. So human-made components, the buildings, the house you are living in, the parks where you go to play, the bridges, the roads, the industries, the monuments, all these are human-made components of the environment. Now, the human components of the environment are the individual, the family, the community, the religion, the education, economic, and the political situations. So these are basically the components of environment. नाउ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम चार डोमेन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द लिथोस्फेयर विच इज बेसिकली लैंड. देन वी हैव एटमॉस्फेयर विच इज बेसिकली एयर. देन वी हैव हाइड्रोस्फेयर. देन वी हैव बायोस्फेयर. राइट. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. राइट. इट इज द लेयर जहां पे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं. द एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स अस विद द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट. इट इज अ इरेगुलर सर्फेस. तो लिथोस्फेयर इज एन इरेगुलर सर्फेस जिसके अंदर बहुत सारी लैंड फॉर्म्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. नाउ लिथोस्फेयर इज आल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. तो सारे जो हमें मिनरल्स हैं वो लिथोस्फेयर से ही मिलते हैं. Then we'll be talking about hydrosphere. So hydrosphere क्या है? जितने भी water के sources हैं वो hydrosphere में हैं. Rivers, lakes, seas, oceans, etc. All these are part of hydrosphere. Then if we talk about atmosphere, atmosphere क्या है? It is the thin layer of the air which surrounds the earth, right? तो ये जो atmosphere है ये हमें sun की harmful rays से बचाता है. और एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बेसिकली गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, carbon dioxide. So all these gases are basically in the atmosphere. Then we have dust and water vapor present in the atmosphere. Then what is biosphere? So biosphere is the zone where life exists. So it is the narrow zone of the earth जहाँ पे land, water और air interact करते हैं ताकि लाइफ को सपोर्ट कर सकें. क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए. तो जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं. राइट. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज लिथोस्फीयर, दिस पार्ट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर. एंड वेयर जिस जोन में ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं वहां पे हमें बायोस्फीयर मिलता है. राइट. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कुछ भी नहीं है. इकोसिस्टम इज अ discrete unit that consists of living and non-living parts interacting. तो जहां पे भी बायोटिक यानी कि लिविंग और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. अब ये एक स्मॉल एग्जांपल है एक पॉन्ड इकोसिस्टम की. तो यहाँ पे आप बायोटिक फैक्टर्स देख पा रहे हो.
जो एनिमल्स हैं, जो ट्रीज हैं, बायोटिक फैक्टर्स, और एबायोटिक फैक्टर्स, वाटर, सॉइल, तो ये सब इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस पॉन्ड इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम, द डेजर्ट इकोसिस्टम और द रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हम लोग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रैवल करना था फास्टर, तो हमने रोड्स बनाई, कार्स बनाई. सो वी इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड वी कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. जो अर्ली ह्यूमन बींग था उसने तो एनवायरनमेंट के साथ, नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ अडेप्ट कर लिया था, पर विद टाइम we learned to grow crops, we learned to domesticate animals, and we started leading a settled life, right? फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन भी काफी इजी हो गई, ट्रैवल करना कितना आसान हो गया. सो वी आर कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते रहते हैं जिनका काफी नेगेटिव इफेक्ट भी होता है एनवायरनमेंट पे. तो व्हाट वी रिक्वायर इज अ परफेक्ट बैलेंस is required between the natural and human environment. Humans must learn to live and use the environment in a harmonious way. So we need to make sure कि हम अपने environment को भी प्रोटेक्ट करें, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें हम. सो I will end this chapter here. So this was a basic chapter, your first chapter. So I hope कि आपको ये chapter अच्छे से समझ में आया है. And thank you so much for watching this video. And if you like this video, then please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.